Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to start from the unit number 4, pollutants and their effects on the environment. Our topic of discussion is greenhouse effect and global warming. So open your book, page number 40. Earth, the third planet from the Sun, the only planet having the vast diversity of life forms, while other planets of our solar system are either scorching hot or bitterly cold, Earth has relatively stable temperature. What's that which is making Earth different? What exactly is making Earth such a favorable place to live on? It's Earth's atmosphere. Earth's atmosphere is thin layer of air surrounding the Earth from all sides. This layer of air protects the Earth from the harmful radiation from the sun. But this stable temperature is rising every passing years. Oceans are getting warmer. Significant shifts in the climate is seen. Glaciers are melting. Why is all this happening? We will find the answer to this question through this session. Greenhouse effect. We will discuss it with the help of a diagram. Students, this shows the Earth. This layer shows the atmosphere of Earth. So the heat rays or light rays are shown by the arrows that are coming from the sun. As we know that Earth is constantly bombarded with enormous amount of radiations from the sun which we receive in the form of light and heat energy. These radiations have to first pass through the Earth's atmosphere before reaching the Earth. यानी सन से जब रेडिएशंस एंटर होती हैं तो वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में से गुजरते हुए अर्थ तक पहुंचती हैं. देन जब अर्थ के पास आती हैं तो अर्थ की सरफेस से टकराती हैं. They strike the surface of Earth, and while striking the surface of Earth, some portion is absorbed and some reflects back. इन रेडिएशंस का कुछ हिस्सा अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है. यानी सम ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस. देन अब जो हिस्सा ऑब्जॉर्ब हो गया और उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हुआ. जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसका कुछ पोर्शन तो अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर जाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ रास्ते में कुछ गैसेस मौजूद होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, वाटर वेपर्स, ये तमाम गैसेस जो इन रिफ्लेक्टेड हीट रेज के रास्ते में आएंगी, ये क्या करेंगी, इन हीट रेज को ट्रैप कर लेंगी. अब हीट रेज जब इनमें ट्रैप हो जाएंगी तो वो दोबारा अर्थ की तरफ ही उनको छोड़ेंगी, यानी अर्थ की तरफ ही वो रीइमिट होंगी. अर्थ से जब स्ट्राइक करेंगी तो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होंगी. अगेन उनके रास्ते में ये गैसेस आएंगी, वो दोबारा उन्हें अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, अर्थ दोबारा उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करेगी टुवर्ड दीज गैसेस. यानी ये सिलसिला चलता रहेगा. एंड देन दीज ग्रीन हाउस गैसेस will trap the heat rays permanently, and this will help to keep the Earth's planet warm. Let's define greenhouse effect. The greenhouse effect is a natural process that warms the Earth's surface. When the sun's energy reaches the Earth's atmosphere, some of it is reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ की सरफेस को वार्म रखता है. जब सन से एनर्जी आती है, अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर से एंटर होती है, तो अर्थ की सरफेस के साथ कुछ पोर्शन उसका स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस अब्जॉर्ब पोर्शन को, उस ट्रैप्ड पोर्शन को री एमिट करती हैं, री रेडिएट करती हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. और इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं. Let's discuss the greenhouse gases. As we have studied the greenhouse effect, and in the greenhouse effect, the major role is played by the greenhouse gases. ये gases क्या करती हैं? These gases traps the amount of heat reflected from the Earth's surface. अब ये gases चूंकि amount of heat को trap करती हैं,
हीट को अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है मेंटेन करने में ये मेजर रोल प्ले करती हैं। अर्थ को वार्म रखने में ये गैसेस मेजर रोल प्ले करती हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड्स द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, nitrous oxide and water vapors. Okay students, open your book page number 40 और अपनी बुक का पेज नंबर 40 अगर आप ओपन करें तो वहां आपको ऐसा ही मटेरियल लिखा हुआ नजर आएगा। मैं आपकी बुक के पेज नंबर 40 की ही तस्वीर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन डिटेल डिस्कस किया जा रहा है। वेरी फर्स्ट आप यहाँ हेडिंग दें डेफिनेशन। The greenhouse effect is a process in which the heat radiations leaving the Earth's surface are absorbed by some atmospheric gases, carbon dioxide and methane, called greenhouse gases. Greenhouse effect क्या है? Basically ये एक ऐसा process है जिसमें heat radiation जो अर्थ की सरफेस से बाहर जा रही होती हैं, उन्हें greenhouse gases absorb कर लेती हैं और इस effect को हम नाम देते हैं greenhouse effect का। अब यहाँ next heading आप दें explanation की। Energy radiated by the sun converts into the heat when it reaches the earth. Some heat is reflected back through the atmosphere, while some is absorbed by atmospheric gases and irradiated back to the earth and causes increase in earth's temperature. Transfer of this heat energy to the atmosphere and its re-radiation in all directions, including downward to the surface of earth, is called greenhouse effect. यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सन से जो रेज आती हैं अर्थ की तरफ वो कन्वर्ट हो जाती हैं हीट रेज में, और ये हीट रेज जब अर्थ की सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं तो उनका कुछ पोर्शन अर्थ की सरफेस अब्जॉर्ब करती है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक होता है एटमॉस्फेयर की तरफ और एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की कोशिश में होता है, लेकिन रास्ते में ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं जो इन हीट रेज को ट्रैप कर लेती हैं और ये ट्रैप हीट रेज दोबारा री अमिट होती हैं, री रेडिएट करती हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में ही, अंदर ही, यानी एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। नेक्स्ट यहाँ आपने हेडिंग देनी है रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो द ग्लोबल वार्मिंग इज बिलीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जब इंक्रीज करता है तो अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इफेक्ट जनरेट होता है उसे हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके कंसिक्वेंसेस, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। In the absence of greenhouse effect, the Earth's temperature would have been -20 degrees Celsius to -40 degrees Celsius. But too much of something is bad. Over the last 2 centuries, human activities have changed the Earth's atmosphere in dramatic way. The amount of greenhouse gases has increased and are still increasing. They trap too much heat, and this excessive greenhouse effect results into global warming, which is an increase in Earth's average temperature. Consequences of global warming are enormous. Its effects are not limiting to one country, but it would affect the entire planet. What we have discussed, ग्रीन हाउस इफेक्ट की फेवरेबल बात यह है कि इसकी वजह से अर्थ के टेम्परेचर मेंटेनेंस में हेल्प मिलती है। अर्थ का टेम्परेचर -20 -40 डिग्री में फॉल नहीं करता, यानी फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज करेगा बहुत ज़्यादा तो इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और अर्थ का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके सराउंडिंग पर बुरे इफेक्ट्स आएंगे, जैसा कि हायर टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स। हम देखते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट वेव जनरेट होती हैं। चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, वार्मर ओशंस, राइजिंग सी लेवल्स, melting of glaciers, less snow and ice, or changes in the pattern or life cycles of plants, changes in animals migration and life cycle etc. इस तरह के बेशुमार इफेक्ट्स जो हैं इसके हैं हमारी सराउंडिंग पे।
अब नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को इन डिटेल देखते हैं। Now let's define the global warming. Open your book, page number 41-42. Due to human activities, the amount of greenhouse gases like carbon dioxide and methane from industries and vehicles have increased in the atmosphere. This speeds up the greenhouse effect and is increasing the average temperature of Earth. As a result, the Earth globe is getting warmer. This is called global warming. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ओवरऑल एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे एक वार्मिंग इफेक्ट जनरेट होता है और उस वार्मिंग इफेक्ट को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। अब ग्लोबल वार्मिंग की जो मेन रीजन है, इसकी वजह क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज्यादा होना, और ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कहाँ से आ रही हैं? जो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स का, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके धुआं से हमारे पास ऐसी गैसेस आती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और ये गैसेस लार्ज अमाउंट में हीट को ट्रैप करती हैं, और ज़्यादा अमाउंट में जब हीट ट्रैप हो जाती है तो इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और अर्थ का जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उससे एक वार्मिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के हमारी सराउंडिंग पे, हमारी अर्थ पे क्या इफेक्ट्स हैं? वेरी फर्स्ट जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो है ग्लेशियर्स का लार्ज अमाउंट में मेल्ट होना। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ग्लेशियर्स मेल्ट एट एन अलार्मिंग रेट. This results to an increase in the sea level, which is danger to low-lying areas. Some of the areas that may go under the sea if the sea level kept on increasing include Bangladesh, parts of Africa, and even the major cities like London and New York. इसका जो मेन इफेक्ट है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, और सी लेवल के इंक्रीज होने से ये जो लो लाइंग आपके कंट्रीज हैं या सिटीज हैं वो डेंजर में हैं। दिस आल्सो क्रिएट्स फ्लड्स इन लो लाइंग कोस्टल एरियाज, इससे फ्लडिंग की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।